Good morning, all. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So in the last part, we discussed about that constraint relation for a rigid rod, or when the rod is sloping down, and then we calculated the relation between velocities of their edges. So there we consider that suppose if you are keeping a rod, and if it is in contact with smooth surfaces, it may fall down, and this point we assume that it is moving with a velocity towards right, that is equal to VB, and this point is going to move down with a velocity, take it as VA. So the y component, or this y, is keep on changing with respect to time, and this x is also keep on changing with respect to time. So dy by dt will give the value of VA, and dx by dt will give the value of VB. Then we wrote the relation between VB and VA, and we got it as like VB is equal to nothing but tan theta into VA. Now I'll discuss one more method to find out this same constraint relation. So this constraint relation is applicable for any rigid body whose dimension is not changing. So over here, if you are just considering a rigid body over here, and assume that this object is moving in different direction, this entire object is moving, it may have some rotational motion, it may have some translatory motion. That means this object ऐसा move कर सकता है और ये rotate करके भी move कर सकता है. Okay, so we are just considering a situation in which if we are taking a point over here, take it as point A, and just consider another point over here, take it as point B. Now assume that is point A. At this instant, it is moving with the velocity along this direction. Let's say its instantaneous velocity in this direction is represented by, take it as VA. Okay, and velocity of this point at this instant B is represented by something like this. Let's say this is equal to VB. तो ऑब्जेक्ट कैसे तो भी मूव कर रहा है, तो पॉइंट ए अभी ऐसा डायरेक्शन में VA का डायरेक्शन में मूव कर रहा है, point B is moving along this direction. Let's say that is equal to VB. Now what we need to do is we just draw a straight line which is connecting point A and B. So आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट कैसे तो भी मूव कर सकता है, बट ये जो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो डिस्टेंस है, that is not going to change because the rigid body है. A और B के बीच में अगर initial length L है, तो it will be always remains as L only. It's not going to change. So we can find out what about the component of this velocities along the line joining A and B. Okay, so let's say this VA is making an angle theta 1 with respect to this line joining A and B, and VB is making an angle theta 2 with respect to this line joining A and B. So we can find out what about the component of VA along the line joining A and B. So component of VA along this direction, this component will be equal to, we know that this will be equal to VA cos theta 1, and this component will be equal to nothing but VB cos theta 2. Okay, अभी A और B के बीच में जो distance है वो same होना चाहिए. That means VA cos theta 1 should be equal to VB cos theta 2. अगर VA cos theta 1 ज्यादा है तो क्या होगा, A और B के across जो length है वो बढ़ते जाना चाहिए because A ज्यादा velocity से move कर रहा है.
अगर b का vb cos theta का वैल्यू अगर va cos theta से ज्यादा है तो क्या होगा, इट इज गोइंग टू मूव लाइक a और b के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होना चाहिए, बट a और b का डिस्टेंस कांस्टेंट है, so we can say that component of velocities along the line joining a and b will be always equal to a constant. That means the value of va cos theta 1 का value should be equal to vb cos theta 2. So that will be the constraint relation between these 2 points. So by using this constraint relation also, पहले हमने जो क्वेश्चन किया है उसको हमने constraint relation से भी सॉल्व कर सकता है. अब देखो मतलब ये जो कंसेप्ट यूज करके भी हम लोग सॉल्व कर सकता है. अब देखते हैं जो पहले क्वेश्चन है ये रिलेशन से हम लोग कैसे सॉल्व करेगा. तो हमने ऐसा कंसिडर किया था, there is a rigid rod which is in contact with a smooth surface. So हमने रॉड को ऐसा कंसिडर किया था. Then we assume that this point B is going to slide towards right with a velocity, उसको हमने VB consider किया था, and this point A is going to move downward with a velocity, उसको हमने VA consider किया था, and this angle were taken as nothing but theta, right? Now same as like in the previous case, A भी एक rigid body है, तो A और B का बीच में जो distance है that is not going to change. So what we have to do is just draw a straight line which is connecting point A and B or any 2 points in the rigid body. The next step में क्या करना है, we need to resolve the velocities along the line joining these 2 points. मतलब point A और point B का जो line joining है उसका direction में velocity को resolve करना है. So over here we can observe that this one is the line joining point A and B. Now if this angle is equal to theta, we can say that this angle should also be equal to theta. So component of VB along the line joining this will be equal to VB cos theta. अब ये theta है तो ये क्या रहेगा, 90 रहेगा, तो this will be equal to nothing but 90 minus theta. So A angle रहेगा 90 minus theta. So we can find out the component of VA along the line joining A and B. So component of VA along the line joining A and B, we can take it as nothing but VA cos 90 minus theta. VA cos 90 minus theta रहेगा VA sin theta. So we got the component of velocities of point A and B along the line joining them. अभी A velocity हमेशा same होना चाहिए, मतलब VB sin theta का value VA cos theta होना चाहिए. So we can write this VA sin theta should be equal to nothing but VB cos theta. So we can write VA into sin theta divided by cos theta should be equal to VB. So we can write the value of VA into tan theta should be equal to VB. तो पहले हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था वो हमको ये मेथड से भी मिल सकता है. That is VA relation, that is VA tan theta is equal to VB. Got it? So remember this one, कोई भी rigid body है उसमें कोई भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी दिया है, so just draw a straight line connecting that 2 point and resolve all the velocities along the line joining them, and they should be equal. Okay, down this one. मैंने जो लास्ट टाइम में लिखा था वो हेडिंग के अंदर ही लिखना है, constraint relation for a rigid body करके. बोलो बेटा. सर तो ये कंपोनेंट अलोंग द वो लाइन ही रहेगा क्या जो उनको कनेक्ट, मतलब वो ए एंड बी को कनेक्ट A और B के क्रॉस A और B का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला, तो along the always find out the component of velocities along the line joining 2 points A and B. ओके सर. Then draw this diagram and around the relation, that is VA cos theta 1 should be equal to VB cos theta 2.
So what is the subheading? पहले हमने जो लिखा था उसके अंदर ही है. Okay. There is another method to solve it. Okay, sir. So after drawing this diagram, we can write for 2 points. If their separation is constant, then during motion, their velocity components, then during motion, their velocity components along the line joining these points, along the line joining these points always remains equal. Sir, can you explain this method again? अगर हमारे पास कोई भी एक रिजिड बॉडी है तो रिजिड बॉडी मतलब उसका डायमेंशंस या शेप चेंज नहीं होता है. तो वो रिजिड बॉडी में आप कोई भी 2 पॉइंट मान लो, वो 2 पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम ही रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है. Yes. Right? So if you are just considering a point over here, take it as point A, another point over here, take it as point B. And ये दोनों के बीच में जो लाइन ड्रॉ किया, there is having a length L over here. तो वो जो लेंथ है वो तो चेंज होने वाला नहीं है. ऑब्जेक्ट कैसे तो भी मूव करो, या रोटेट करके मूव करो, या ट्रांसलेशन में मूव करो, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन कर दो, कैसे तो भी ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो चेंज होने वाला नहीं है. नॉट ओनली बिटवीन ए एंड बी, टू एनी पॉइंट बिटवीन any 2 point on rigid body, it will be a constant. So if you are finding out the component of velocity of A along the line joining them, let's say it is VA, and component of velocity B along the line joining them, take it as VB. अगर VA का वैल्यू ज्यादा है VB से तो क्या है, वो लेंथ कम होना चाहिए, है ना? Yes. अगर VB का वेलोसिटी ज्यादा है VA से तो लेंथ बढ़ना चाहिए. Yes, तो sir. लेंथ कांस्टेंट है, उसका मतलब क्या है, ऑलवेज VA should be equal to VB. Okay, The sir. component of velocities along the line joining any 2 points in rigid body should be equal to a constant, Okay, sir. or should be always remains equal. Sir, can you give us some example? हो गया? Yes, sir. So पहले हमने जो क्वेश्चंस किया था, सेम क्वेश्चन को हमने कंस्ट्रेंट ये मेथड यूज करके कर रहा, जो रॉड स्लाइड करके जा रहा था. तो पॉइंट ए और बी के अक्रॉस रिलेशन लिखना था. तो पहले हमने उसका एक्स वाई करके डिफरेंशिएशन करके किया था, अभी हमने ये मेथड यूज करके कर रहा है. जस्ट रिजॉल्व द वेलोसिटीज अलोंग लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, देन वी कैन फाइंड आउट द सेम रिलेशन. Hello, sir. बोलो बेटा. Sir, can you give us some examples? Yeah, we'll take some. Sir, if they are traveling towards each other, then
they cannot travel towards each other. If they are traveling towards each other, that means their Separation will not be velocity, constant. yes, उसके बीच में जो distance कम होता जा रहा है ना, वो possible नहीं होता है. Always along the line joining them, they will have a same velocity and same direction. Okay. Done, sir. Yes, sir, done. Now we'll discuss about second constraint. So that is related to a block and string constraint relation. So we'll discuss about this block. अगर कोई भी question में block और string का कुछ relation find out करना है, then we'll use this concept. So block and string constraint relation. So can you show once again? Parwala. Thank you, sir. Yeah. Now in block string constraint relation, इसमें question में ऐसा देगा, there will be a string connected to a block. So assume that a situation in which over here we are having a block. Let's say this is represented by nothing but block B, and which is kept on a smooth horizontal surface. And a string is connected to this block, which is passing through a pulley, something like this. And over here, this pulley is fixed. Okay. And this string is passing through this pulley, and the other end of the string is connected to a block. Let's say a block represented by nothing but block A over here. Correct. So depends upon the situation. Assume that due to weight of this block A, it is going to move downward direction with the velocity, take it as VA. So the string will move with the velocity VA along this direction because string is attached with this block. So अगर हम लोग इसको इस तरफ खींच रहा है तो ये B तो ऊपर तो उठ के नहीं जाएगा. It will move towards right. Okay. So assume that this is moving towards right with a velocity that is equal to VB. Because of its weight mg, it is in contact with the surface, but वो right की तरफ से move करेगा with the velocity VB. And if the angle between these string and the direction of velocity of block, let's say VB, is nothing but theta. So we can find out what about the relation. Our aim is to find out the relation between this VA and VB over here. Velocity of block B or velocity of block A में relation find out कर. Okay. So here also we can go for two methods. One is nothing but our normal equation use करके. वन मेथड इज हम लोग इसको इक्वेशन लिखे हम लोग इसको कर सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है. और अदर मेथड है दैट कंस्ट्रेंट रिलेशन डायरेक्टली हम लोग लिख सकता है. ठीक है. अब देखो हमने इक्वेशन लिखे कैसे इसको सॉल्व करना है. वी कैन जस्ट कंसीडर द सिचुएशन समथिंग लाइक दिस. ये जो लेंथ है उसको हमने कुछ y कंसीडर कर रहा है एंड दिस डिस्टेंस दैट आई एम जस्ट कंसीडरिंग इट एज समथिंग बट x एंड ये जो डिस्टेंस है that we can take it as something but let's say h. Okay. And you can write what about the relation between them over here. मतलब ये जो points है इसके बीच में relation क्या रहेगा उसको differentiation करके हम लोग उसका आंसर फाइंड आउट कर सकता है. That means अगर मैंने इसको x कंसिडर किया है ये पार्ट को एंड जब ये ब्लॉक बी ए नीचे आएगा तो दिस ब्लॉक P is going to move towards right. So with respect to time, the value of x is going to decrease. X का value कम होता जाएगा. And ये जो string का जो length है over here, let's say it is represented by y. अगर block towards right move करेगा तो ये string का length है वो भी change हो जाएगा. Like जब block इधर है तो ये था length. अगर block इधर आ गया तो इसका length ऐसा हो जाएगा, इसका length ऐसा हो जाएगा. तो that y or length of that string is also going to change. But ये जो height h है this is not going to change. Like ये जो distance h है तो हमने ये का displacement का part consider नहीं कर रहा है. ये triangle में ये जो h है that will remains constant. मतलब आप देख सकते हैं इसको ऐसा a h है a x है और y है.
एंड दिस h will remains constant. अगर ब्लॉक आगे जाएगा तो ये ऐसा ऐसा चेंज होते जाएगा. तो x को चेंज कर रहा है, y चेंज कर रहा है, बट दिस h will be equal to a constant. ओके, तो ये जो h है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ a नहीं है. ठीक है, हमने जो ट्रायंगल में जो सरफेस से लेकर इधर तक जो ट्रायंगल ड्रॉ किया उसका हाइट है. ऑलराइट, so by using this concept we can write the relation between this Sir. x, y and h. बोलो बेटा. Sir, how is, I didn't understand why it will it move towards right? This block A is moving in downward direction. Yes. So the string is pulling this one with some velocity. That's why this block B is moving towards right. Okay. ठीक है, हम लोग ने ये जो मतलब आपके पास एक ब्लॉक है, उसके साथ मान लो हमने एक कुछ अटैच करके रखा है, स्ट्रिंग अटैच करके रखा है. ठीक है, और हम लोग इसको पुल कर रहे हैं. तो दिस इज, उसका जो वेट है वो भी एक्सर्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. ठीक है, अगर हम लोग इसको पुल करेगा तो प्रैक्टिकल भी आप ऑब्जर्व कर सकता है, वो तो ये जो ऑब्जेक्ट ऐसा तो नहीं जाएगा ना. हम लोग इसको पुल कर रहे हैं सर, तो क्या ऐसा ही जाएगा ना, बिकॉज ऑफ इट्स वेट. राइट, ऐसा उड़ के तो नहीं जाएगा, वो सरफेस से ही जाएगा ऐसा. तो मान लो कुछ टॉय जैसा है, हम लोग उसको पुल कर रहे हैं तो क्या रहेगा, वो सरफेस से ही जाएगा ना ऐसा. Yes. तो ये जो ब्लॉक है वो ऐसा मूव कर रहा है विद वेलोसिटी vb, एंड ये जो ब्लॉक A है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, वो स्ट्रिंग इस तरफ मूव कर रहा है. स्ट्रिंग इज गोइंग टू मूव थ्रू अ पाथ समथिंग लाइक दिस. राइट, Yes. तो इधर हमने एक मतलब कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखने के लिए ऐसा ट्रायंगल कंसीडर किया है. तो दिस h will be a constant, the value of y is going to change and the value of x is also going to change. Okay, now we can write the relation between them. Pythagoras theorem से डायरेक्टली इसका रिलेशन लिख सकता है, that we can write this x square plus y square is equal to nothing but h square. Right, now we Sir, can x square x plus square plus y y square, yeah, x square plus h square is equal to y square. Now we can differentiate this equation. So if you are differentiating this equation, x square का differentiation with respect to time कर रहे हो, तो क्या मिलेगा? 2x 2x into dx divided by dt dt. plus h square का differentiation 2h 0, because 2h into dh by dt आएगा, h constant है तो dh is equal to Constant, yes. constant 0, and y square का differentiation होगा 2y into 2y dy into divided by dy dt. अभी देखो 2 into x into dx by dt. dx by dt represent कर रहा है what about the rate at which this x is changing? That is nothing but representing the velocity of VB. v. VB. ठीक है, yeah. So we can write this is equal to nothing but vb is equal to, अभी फिर से हमने डिस्कस किया है, अभी देखो इधर x का वैल्यू कम कर रहा है तो velocity vb will be, मतलब dx by dt will be a negative value, so we can put a minus vb over here. ठीक है, because the value of x, change in value of x is negative because x is going to decrease, is equal to 2y. 2y का वैल्यू हम लिख सकता है, this is 2 into y into dy by dt. dy by dt किसका वेलोसिटी है? VA. va, है ना. dy by dt is representing what about the rate at which this is moving, so that is va. So we can write this is equal to nothing but va. Now we can cancel, and ab याद रखना है, y का वैल्यू भी Sir, change VA कर, मतलब VA decrease will कर रहा है, तो we also can be put a negative. negative, yes, because y is going to decrease. Yes. So we can cancel this negative sign and this 2. So we can write the relation between this VA and VB. That is, we can write this VB into x divided by y is equal to nothing but VA. अभी देखो VB into a triangle से देखो x by y. x by y क्या होता है? थीटा का टर्म से कौन सा थीटा है? Cot theta. Adjacent Cos side theta. by, yeah, cos theta. Cos So we theta. can write this is equal to cos theta. Adjacent side by hypotenuse. We can write VB cos theta is equal to VA. That is a constraint relation between them. So can you show Correct. how that minus sign came in that third step? Y x का वैल्यू कम हो रहा है ना बेटा, And this is पार्टिकल आगे जा रहा है तो right x hand का side वैल्यू है। कम हो रहा है, तो right hand side. y, ये y का वैल्यू भी कम हो रहा है ना. Okay, okay. मतलब पार्टिकल अगर मान लो assume that पहले ये जो ब्लॉक है वो इधर था, एंड हमारा जो पुल्ली है वो इधर था, ये ग्राउंड है,
तो हमने जो ट्रायंगल बनाया ये पुल्ली ग्राउंड और ब्लॉक के हिसाब से बना है, ऐसा बना है, समझा? इसको x लिया है, इसको h लिया है और इसको y लिया है। अभी ब्लॉक आगे जा रहा है, अगर मान लो ब्लॉक इधर आ गया तो हमारा x का वैल्यू कम हो गया, करेक्ट? अभी ये हो गया हमारा x का पोजीशन एंड ये हो गया हमारा y का पोजीशन, बट h विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। अभी ब्लॉक और आगे गया तो क्या होगा, हमारा h का वैल्यू हो जाएगा a और सॉरी x का वैल्यू होगा a, h का वैल्यू होगा, मतलब x का वैल्यू तो सेम ही रहेगा but the value y is going to change, तो y भी कम हो रहा है, x भी कम हो for रहा है, that only h will be a constant. we have kept minus for x and y, na? x and y because y कम हो रहा है तो dy is negative, x कम हो रहा है तो dx is negative। बोलो बेटा। सर एक पॉइंट पे ऐसा भी हो सकता है कि y और h कोइंसाइड कर ले। हाँ ऐसा मतलब कोइंसाइड कर रहा है। उसके बाद क्या हो गया, va is equal to v, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, तो va is equal to vb हो गया, तो वो पुल्ली जैसा हो गया ना। हाँ गॉट इट। अगर वो उधर आ गया तो सिचुएशन बिकम समथिंग लाइक दिस, ए पुल्ली इसमें कनेक्टेड किया तो हमने ऑलरेडी लिखा है va is equal to vb हो जाएगा, है ना? यस सर। Around this one सर ब्लॉक के नीचे गिरेगा तो h कांस्टेंट कैसे होगा? नहीं, ये जो h है वो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, जो पुल्ली से लेके ग्राउंड तक का डिस्टेंस को h लिखा है। अच्छा ओके सर। मतलब ये जो डिस्टेंस को h लिया है इधर से लेके इधर तक। ओके सर। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ a नहीं लिया है। ओके यस सर। Yes, sir. ये न्यूटन्स लॉ का सीडीएफ का मटेरियल मिला था क्या आप लोगों को? Yes, sir. पार्ट 1 भी मिला था, पार्ट 2 भी। पूरा नहीं वो नारायण का बुकलेट नहीं है, सीडीएफ। Yes, सीडीएफ sir. सीडीएफ Yes, sir. CDF सीडीएफ मिला है क्या? सारे चैप्टर्स का मिला। सारे चैप्टर्स का मिले। यस सर। सारे चैप्टर का एक साथ मिला है? ओके हाँ सर।
तो कोई भी मेरे को एक बार व्हाट्सएप कर दो वो पूरा चैप्टर का एक साथ जो है मैं कर दो उसे। Yeah. Now discuss another method to find out the constraint relation between them. So अभी इसमें क्या है कि हम लोग को थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है VA और VB का बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए. अभी या गॉट इट, थैंक यू. अभी इसमें हम लोग देख सकता है कि if this is moving with the velocity, take it as VA, and so the string is going to move with the velocity that is equal to nothing but VA. ठीक है, जो ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था with the velocity VA, because of this string is connected to this block, the string is also going to move with the velocity VA, and this block B is going to move with the velocity VB. ठीक है, तो अभी क्या होगा, इधर कुछ गलती हो सकता है. कुछ लोग इसको लिखेगा VA cos theta, VA का जो कंपोनेंट है along the direction of VB, so VA cos theta is equal to VB लिखेगा. कुछ लोग क्या होगा, इसको ऐसा लिखेगा VB cos theta is equal to nothing but VA. समझा? तो VA का VB का डायरेक्शन में कंपोनेंट देखा तो VA cos theta मिला, और VB को VA का डायरेक्शन में कंपोनेंट देखा तो VB cos theta मिला. तभी देखो हमको दो डिफरेंट आंसर मिल रहा है. दो एक साथ दोनों आंसर तो मतलब तो सही नहीं हो सकता है. इधर VA cos theta VB हो सकता है या VB cos theta is equal to VA हो सकता है. ठीक है, अभी हम देखते हैं इसको, मतलब ये दोनों सही क्यों नहीं है. ठीक है, और हमने इसमें कुछ गलती कर रहा है, तो व्हाट मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग ओवर हियर. ओके, तो हमने इसमें क्या मिस्टेक कर रहा है वो आइडेंटिफाई करने के लिए जस्ट कंसीडर अ सिचुएशन इन व्हिच assume that there is a force of 10 Newton which is acting along this direction. So what is the component of this force along x-axis? What is component of this force along x-axis? 0. 0. ठीक है, because ये angle 90 degree है तो इसका component मिलेगा 0. So we can write this is correct. अभी मैंने दूसरा एक situation consider कर रहा है. So there is an xy coordinate system and there is a force of 10 Newton which is acting along this direction. And just consider a point over here or the line over here. This line is making an angle 60 degree with respect to the vertical. So Bolo, what is component of this 10 Newton along this direction? It will be 10 cos 60. हाँ, 10 cos 60. हाँ, cos 60 कितना होता है? 5 है. 1/2 होता है, तो ये क्या 5 हो गया? 1/2 तो 5 आएगा. 5. ओके, अभी हमने क्या किया कि अगर ये इसके बीच में एंगल 60 है तो इसके बीच में एंगल क्या रहेगा? 30 रहेगा. 3 डिग्री. ठीक है, अभी देख रहे हैं व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस 5 अलोंग दिस डायरेक्शन. ठीक है, अभी 5 का ए वाला डायरेक्शन में कंपोनेंट देख रहा है, तो क्या मिलेगा आंसर? 5√3/2. 5√3/2. So we can write as 5 into cos 30. Cos 30 is √3 divided by 2. So I'll get the answer as 5√3/2. Okay. अभी आप दोनों सिचुएशन को देखो. तो एक सिचुएशन में हमने डायरेक्टली मतलब इसको कंपोनेंट देखा तो 0 मिल रहा है. देयर हमने एक बार इसको कंपोनेंट किया, फिर से उसको कंपोनेंट करे तो मेरे को आंसर 5√3/2 मिल रहा है. तो इसमें कौन सा आंसर सही है? तो दोनों सही है. सर फर्स्ट पॉइंट. कैलकुलेशन के हिसाब से हमको दिखता है कि दोनों सही है, बट एक्चुअली कौन सा सही है? फर्स्ट एक्चुअली तो फर्स्ट वन सही, बिकॉज वी नो दैट वर्टिकल है तो उसको हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट नहीं रहेगा. तो ये इधर हमने गलत आंसर मिला तो हमने कुछ तो कुछ गलत किया. तो क्या गलती किया इधर? ये जो 5 है या ये जो 5 है वो रिजॉल्व पार्ट है, मतलब एक्चुअल फोर्स नहीं है, फोर्स का कंपोनेंट है. तो कंपोनेंट को एक्चुअल फोर्स जैसा लेके फिर से हम लोग रिजॉल्व नहीं कर सकता है. समझ बात? तो एक्चुअली एक पार्टिकल अगर ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट हमने फाइंड आउट किया है, फिर से ये कंपोनेंट को एक्चुअल फोर्स जैसा मान के फिर से कंपोनेंट नहीं ले सकते. कंपोनेंट का कंपोनेंट आप नहीं ले सकता है. समझ बात? तो एक्चुअल जो फोर्स है उसको ही रिजॉल्व करना है, एक्चुअल जो वेलोसिटी है उसको रिजॉल्व करना है, एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है उसको रिजॉल्व करना है. रिजॉल्व पार्ट को फिर से रिजोल्यूशन नहीं करना है, फिर से स्प्लिट नहीं करना है. ओके, तो दैट्स व्हाई दिस मेथड इज रॉन्ग. अभी हम लोग इधर देखना है, इधर भी we are getting a confusion that whether VB cos theta is equal to VA या VA cos theta is equal to VB.
तो उसके लिए पहले आपको फाइंड Sir, आउट how करना did है you कौन get सा first चीज one? VA cos theta is equals to VB. How did you get that? कंपोनेंट ऑफ VA along the direction of VB. ये V है, Hmm. VA का हाँ. ये वाला कंपोनेंट क्या है? VA cos theta. Hmm. तो VA cos theta should be equal to VB, है ना? Hmm. और VB का ये वाला कंपोनेंट क्या है? VB cos theta which is equal to VA. Okay. ओके, तो अभी हम लोग जो एक्चुअल कंपोनेंट है, एक्चुअल वेलोसिटी है, उसको अब रिजॉल्व करना है। तो अब लोग को मतलब ये इसमें देखना है VB एक्चुअल वेलोसिटी है और VA एक्चुअल वेलोसिटी है, मतलब एक्चुअली ब्लॉक VB का डायरेक्शन में जाता है या कि VA का डायरेक्शन में जाता है। तो अगर मैंने ब्लॉक B को कंसिडर कर रहा है, हम लोग इधर से ये मतलब कुछ स्ट्रिंग यूज करके इसको पुल कर रहा है, तो B या देखना है B इज गोइंग टू मूव लाइक दिस या इट इज गोइंग टू मूव लाइक दिस, हॉरिजॉन्टल जाएगा या ऐसा जाएगा, Horizontal. हॉरिजॉन्टली जाएगा, नहीं हॉरिजॉन्टली जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी असली है, मतलब कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअल वेलोसिटी? VB। तो VB इज द एक्चुअल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसको VA का डायरेक्शन में, VB का कंपोनेंट VA है, VA का कंपोनेंट VB नहीं है। So we can resolve VB along the direction of VA. Got it? Actually block towards right move करने वाला है, ऐसा move करने वाला नहीं है। ये right में move कर रहा है, उसके वजह से VA में velocity मिल रहा है। So we need to resolve VB along the direction of VA. So we can write the actual relation is VB cos theta should be equal to VA. Got it? तो ये constraint relation use करके हमको directly ये result मिल जाएगा। हमने इतना कुछ इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है। तो इसमें खाली इतना याद रखना है, अभी आपको ऐसा कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है कौन सा एक्चुअल वेलोसिटी है, कौन सा रिजॉल्व पार्ट है। कल इतना देखना है, ऑलवेज ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो एक्चुअल वेलोसिटी रहता है एंड स्ट्रिंग का वेलोसिटी उसका कंपोनेंट रहता है। तो अपने कल इतना याद रखना है, ऑलवेज रिजॉल्व द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। ब्लॉक का वेलोसिटी स्ट्रिंग का डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है, कभी भी स्ट्रिंग का वेलोसिटी ब्लॉक का डायरेक्शन में रिजॉल्व नहीं करना है। ऑलवेज resolve the velocity of block along the direction of string. So this relation is correct and this relation is wrong. Got it? From this one. Okay. For 1 minute.
Sir, done. Okay. So remember, always resolve the velocity of block along the direction of string. Now discuss about the next constraint relation, that is the constraint relation between pulley and block. So we'll discuss about this block pulley constraint system or pulley constraint system. In block pulley constraint relation, अब इसमें ऐसा कुछ देता है कि like अगर if it is a fixed pulley, so we know that this fixed pulley is only like changing the direction of motion. Assume that we are having a block over here taken as block A and another block over here taken as block B, and we know that if this block B is moving downward direction with a velocity VB, then this block A is going to move with a velocity taken as VA in upward direction. So we know that this VA will be equal to nothing but VB. दोनों का magnitude same रहेगा, but direction opposite रहेगा. So this is just reversing the direction. So we can write VA is equal to minus of VB for a fixed pulley. वो तो हमको पता है. अभी देखते हैं अगर movable pulley, अगर pulley भी खुद move कर सकता है, then how to find out the relation between them. तो इसमें ऐसा कुछ देगा, like consider a situation. Assume that we are having a fixed pulley over here, and the string is passing through this pulley, which is connected to a block, take it as VA over here, and sorry, connected to a block A over here, and this is passing through a movable pulley over here. It is passing through a movable pulley, which is connected over here, and this movable pulley is over here, okay? And another block of B is connected with this, take it as block B over here. Now, our aim is to find out if this A is moving in upward direction with the velocity. Let's say it is moving in upward direction with the velocity VA. So this B will move with some velocity in downward direction. So let's say that is equal to VB. तो ये VA और VB में relation find out करना है, ठीक है? तो इधर क्या हो गया, एक movable pulley आ गया. तभी देखते हैं movable pulley का जो question है वो कैसे solve करना है. Sir, movable means in what sense it is movable? Like how it will move? अभी ये जो pulley है fixed है, ये तो कहीं जा नहीं सकता है. बट अभी ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा तो इधर का स्ट्रिंग खाली हो जाएगा. तो अगर मान लो ये स्ट्रिंग है, ये ऊपर गया तो ये स्ट्रिंग ऐसा लूज हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा, ये पुल्ली इधर का जो पुल्ली है वो नीचे तरफ आएगा. समझा? तो ऐसा ही है, जो ए ऊपर जाते रहेगा तो बी नीचे आएगा. Sir, so the pulley is accelerating. Not fixed. हाँ, पुल्ली is moving with acceleration, या उसको कुछ वेलोसिटी हो सकता है. पुल्ली फिक्स नहीं है, वो मूव कर सकता है. तो दैट इज नॉट नथिंग बट लाइक मूवेबल पुल्ली. बट ये जो पुल्ली है ये तो इधर अटैच करके रखा है ये पॉइंट में, तो ये तो मूव नहीं करेगा. बट ये पुल्ली फ्री टू मूव है, तो दिस इज अ मूवेबल पुल्ली. गॉट इट? So force acting on the pulley is downwards. अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. नेट फोर्स किधर एक्सर्ट करेगा वो डायरेक्शन में मूव करेगा. सर ब्लॉक एंड टैकल मूवेबल रहेगा ना? क्या क्या? ब्लॉक एंड टैकल. यस यस यस. सो ओवर हियर हमको VA और VB में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तभी देखते पहले जो भी मूवेबल पुल्ली है उसके लिए हम लोग रिलेशन कैसे लिखेगा. ठीक है? Assume that we are having a movable pulley over here, मतलब पुल्ली मूव कर सकता है, ठीक है, just free to move. And assume that a string is passing through this pulley. Assume that a string on this side, this string है, ये पुल्ली से ऐसा पास कर, ठीक है. And assume that this पुल्ली मूव कर सकता है if we are like allowing this pulley to move while giving some velocities to the string on left side as well as on right side. तभी आप ऐसा सोचना है, सपोज ये जो राइट साइड में जो स्ट्रिंग है उसको मैंने x डिस्टेंस नीचे लाया, ठीक है, इसको x डिस्टेंस नीचे लाया एक्चुअल पोजीशन से. एंड लेफ्ट साइड में जो पुल्ली है उसको मैंने y डिस्टेंस नीचे लाया. तो स्ट्रिंग पूरा कितना फ्री हो जाएगा, कितना लूज हो जाएगा स्ट्रिंग? और सर एक से तो दूसरा ऊपर X plus Y. नहीं बेटा, ये पुल्ली फिक्स्ड नहीं है, पुल्ली मूवेबल है, ठीक है, इसको फिक्स करके नहीं रखा है, ठीक है.
अभी ये जो स्ट्रिंग है वो सर नीचे बट जा रहा एक है। स्ट्रिंग तो फिक्स होना चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, कोई भी स्ट्रिंग फिक्स नहीं है, हमने इसको ऐसा रखा है। तो इसको हम लोग मान लो ये एक्स और वाई को हम लोग होल्ड कर रहा है, ऐसा मत सोचे कि वो नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं है। एक्स को मान लो एक हाथ से आप लोग एक्स को होल्ड कर रहा है, एक हाथ से वाई को होल्ड कर रहा है, समझा? Yes. और पुल्ली मूवेबल है। करेक्ट। अभी मान लो मतलब आप ये जो एक्स जो दिखा रहा है एक हाथ से होल्ड कर रहा है स्ट्रिंग को, और वाई दूसरा हाथ से होल्ड कर रहा है, वो पुल्ली मूव कर सकता है। अगर आप इसको एक्स डिस्टेंस नीचे लाया तो अभी आप एक एक सिचुएशन अगर मान लो आपको ऑब्जर्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो ऐसा मान लो कि ये जो स्ट्रिंग है, सोचो ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने इधर अटैच करके रखा है, ओके? एंड राइट साइड में जो स्ट्रिंग है उस ये तो मूव कर सकता है, मतलब इसको मैंने होल्ड कर रहा हूँ, मान लो हम लोग इसको होल्ड कर रहे हैं, इसलिए पुल्ली रेस्ट पे है। अभी मैंने अगर ये पुल्ली है, ये जो स्ट्रिंग है उसको एक्स डिस्टेंस नीचे लाया और हमने उसको नीचे कर दिया, एक्स डिस्टेंस नीचे कर दिया, तो जो स्ट्रिंग है वो कितना फ्री हो जाएगा? एक्स डिस्टेंस फ्री हो जाएगा, तो पुल्ली थोड़ा नीचे जाएगा, है ना? फिजिकली भी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, अगर एक्स को आप नीचे ला रहे हैं तो वह पुल्ली भी रोल करके नीचे आएगा। तो अगर मान लो पुल्ली थोड़ा नीचे आ गया, अज्यूम दैट पुल्ली ए पोजीशन में था, पुल्ली इधर आ गया। अभी पुल्ली को नीचे आने के लिए अभी देखो दोनों साइड में स्ट्रिंग चाहिए, मतलब ए साइड में भी उसको स्ट्रिंग चाहिए, ए साइड में भी उसको स्ट्रिंग चाहिए, समझ में बात? तो अगर पुल्ली अगर स्ट्रिंग को मैंने एक्स डिस्टेंस नीचे लाया तो ये जो 2x. पुल्ली है वो कितना डिस्टेंस नीचे जाएगा? 2x. सोच के बोलो, एक और बार सोच के बोलो। एक्स का आधा हाँ, एक्स का 2. आधा, एक्स बाई 2, है ना बेटा? अभी देखो रेड कलर में मैंने जो दिखा रहा है वो तो कितना स्ट्रिंग फ्री हो गया वो दिखा रहा है। स्ट्रिंग कितना फ्री हो गया? एक्स का फ्री हो गया। तो ये साइड में कितना आएगा? एक्स बाई 2 आएगा, ए साइड में कितना आएगा? एक्स बाई 2 आएगा। करेक्ट। Okay, so total is या सर क्या टोटल एक्स का तो टोटल एक्स का फ्री हो गया, तो पुल्ली कितना जाएगा? एक्स बाई 2 जाएगा ना, ठीक है? फिर एक्सप्लेन इट अगेन। Assume that there is a pulley over here. We are just considering a pulley over here, and एक string एक साइड में हम लोग अटैच करके रखा है। Assume that ए साइड में इसको बांध कर रखा है, एंड दूसरा साइड में जो स्ट्रिंग है वो मान लो इधर था, इसको मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया बाय अ डिस्टेंस ऑफ लेट्स से 2 मीटर। तो 2 मीटर का स्ट्रिंग है वो फ्री हो जाएगा। तो वी कैन आई एम जस्ट कितना स्ट्रिंग फ्री हो गया वो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 मीटर का स्ट्रिंग फ्री हो गया, ओके? हाँ। तो पुल्ली थोड़ा नीचे आएगा। Assume that this pulley is displaced by some distance in downward direction. ये थोड़ा डिस्प्लेस करके मान लो ये पॉइंट पे आ गया, तो पुल्ली स्ट्रिंग कितना फ्री हो गया? 2 फ्री हो गया, बट उसमें से 1 एक साइड पे आ गया और 1 दूसरे साइड पे आ गया। तो एक्चुअली पुल्ली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 1 मीटर ट्रैवल किया। ये समझ में आया? तो स्ट्रिंग कितना फ्री होगा उसका आधा पुल्ली मूव करेगा। इज इट क्लियर? बिकॉज पुल्ली मूव करे तो दोनों साइड में उसको स्ट्रिंग चाहिए। अभी हमने इसको एक और स्टेप आगे देखता है, लाइक Sir, from both the sides we are अभी फर्स्ट केस में हमने अटैच करके रखा है। हाँ, बोथ साइड्स करे तो दोनों साइड को देखना पड़ेगा। So from both the sides we are decreasing one. दोनों साइड में मतलब कितना भी फ्री होगा, अगर एक्स लेंथ फ्री होगा, एक्स बाई 2 एक साइड में आएगा, एक्स बाई 2 दूसरा साइड में आएगा, ऐसा। Okay. अभी हम देखते हैं अगर दोनों स्ट्रिंग को हम लोग फ्री कर रहे हैं तो कैसे मूव करेगा। Assume that we are having a pulley over here, and अभी मान लो दोनों साइड को हमने ये स्ट्रिंग को मतलब डिस्प्लेस कर सकता है। तो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है और इसका सेम स्ट्रिंग है, एक पार्ट राइट साइड में भी है, ओके? अभी जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रिंग है उसको मैंने x डिस्टेंस नीचे डिस्प्लेस किया, एंड y राइट साइड में जो स्ट्रिंग है उसको y डिस्टेंस डिस्प्लेस किया। तो पूरा मिला के स्ट्रिंग कितना फ्री हो गया? x plus y फ्री हो गया, ओके? अभी x plus y फ्री हो गया तो पुल्ली थोड़ा नीचे जाएगा, तो
जो x प्लस वाई है मैंने इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, टोटल पूरा मिला के स्ट्रिंग x प्लस वाई का फ्री हो गया, बट ये जो पुल्ली है उसको ये जो पुल्ली है तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस करके इधर तक आएगा। तो इसका दोनों साइड में हमको स्ट्रिंग चाहिए, तो पूरा मिला के स्ट्रिंग फ्री हो गया था, वो मैंने रेड कलर में दिखा रहा हूँ, दैट इज x प्लस वाई का फ्री हो गया। तो अभी देखो पुल्ली कितना नीचे आया, x plus y y by 2. y by 2 x plus y divided by 2. तो दिस इज नथिंग बट द कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर अ पुल्ली। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा पुल्ली का, हम लोग डायरेक्टली इसको ये मेथड यूज करके कर सकता है। तो कल आप इतना देखना है, सपोज इफ यू आर हैविंग अ पुल्ली ओवर हियर, सपोज इफ यू आर हैविंग अ पुल्ली एंड इसका एक साइड का जो स्ट्रिंग है वो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द डिस्प्लेसमेंट x, वो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड ये साइड में जो स्ट्रिंग है दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस y इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुल्ली वो हम लोग नॉर्मली a से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो a is equal to, we can write x plus y divided by 2. So this is the constraint relation for a pulley. ये समझ में आया? सर वेलोसिटी देंगे तो फिर सेम मेथड ना? हाँ, मतलब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मिलेगा, कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो कितना डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहा है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। तो रिलेशन तो सेम ही रहेगा ऑल क्वांटिटी, ऑल क्वांटिटी। हमने जो भी कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखा है दैट इज वैलिड फॉर ऑल, मतलब डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन, वेलोसिटी तो वेलोसिटी का रिलेशन, एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का रिलेशन। अभी इसमें डायरेक्शन भी आप देखना है, मतलब अगर मान लो इन अ सिचुएशन के पास एक पुल्ली है और क्वेश्चन में ऐसा दिया है, राइट साइड में जो स्ट्रिंग है इट इज गोइंग टू मूव अपवर्ड बाय अ डिस्टेंस x, एंड लेफ्ट साइड में जो पुल्ली है इट इज गोइंग टू डाउनवर्ड बाय अ डिस्टेंस y, एंड ये जो पुल्ली है दैट इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड बाय a। तो इधर भी आप डायरेक्शन के हिसाब से लिखना है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, एक डायरेक्शन को नेगेटिव, ठीक है? अभी बोलो अगर मैंने a का इक्वेशन लिखेगा तो क्या लिखेगा? y minus x by 2. या y minus x by 2, करेक्ट? तो उसको भी आप प्रॉपर डायरेक्शन के हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा, नथिंग एल्स, ओके? तो अराउंड दिस वन, सर अगर एक ही तरफ से छोटा और एक साइड में पकड़ा हुआ है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसका 0 प्लस x डिवाइडेड बाय 2 मतलब x by 2। ओके। तो अगर अटैच करके रखा है तो मूव नहीं कर रहा, उसका 0। So around this one, pulley log constrained motion, और इसमें pulley ड्रॉप करके you can write x plus y by 2. सर can you please explain this one again? क्या बोले बेटा? सर ये क्वेश्चन समझा? सुना नहीं, एक और बार बोलो। ये इक्वेशन तो उसको समझा नहीं शायद से। ओके, I'll explain. 1 minute. Here around this one. Okay. Yes sir. Yeah. तभी पुल्ली कंस्ट्रेंट रिलेशन में हम लोग कल इतना देख रहा है, सपोज इफ यू आर हैविंग अ पुल्ली सिस्टम ओवर हियर एंड इसमें वो मूवेबल, ये मूवेबल पुल्ली है, तो लेट्स से if some strings are passing through this pulley, so just consider that the string is passing through this pulley. अभी ये साइड में जो लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है उसको हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं बाय डिस्टेंस x डाउनवर्ड। तो x लेंथ का जो स्ट्रिंग है वो फ्री हो जाएगा, और अगर लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है उसको डिस्प्लेस कर रहा है बाय डिस्टेंस y इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो y का स्ट्रिंग फ्री हो जाएगा। तो पूरा मिला के स्ट्रिंग फ्री हो गया x प्लस वाई।
Now assume that this pulley is going to displace by some distance in downward direction. तो जो पुल्ली है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है बाय सम डिस्टेंस, मान लो इतना डिस्टेंस क्या है. तो पुल्ली का डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो उसका लेफ्ट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए और इसका राइट साइड में भी स्ट्रिंग चाहिए. Got it? So if this pulley is displaced by some distance, let's say which is represented by A over here, अगर पुल्ली A डिस्टेंस गया है तो क्या देखो ये साइड में इतना स्ट्रिंग चाहिए और ये साइड में भी इतना स्ट्रिंग चाहिए, मतलब कितना है 2A का स्ट्रिंग चाहिए. तो 2A का स्ट्रिंग फ्री होना चाहिए तभी पुल्ली A डिस्टेंस नीचे जाएगा. तो स्ट्रिंग एक्चुअली कितना फ्री हो गया था, x plus y फ्री हो गया था. तो वी कैन राइट A is equal to x plus y divided by 2, where A side of string and y is a displacement of string on left side. So this is the constraint relation for a pulley system. Got it? तो सर ये डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसको लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी चाहिए, मतलब नहीं कोई भी एक साइड में चलेगा तो भी करेगा, जो भी चलेगा. तो y को नहीं कर रहा है, ओनली x को कर रहा है तो x by 2 आएगा, 0 plus x by 2 ऐसा. ओके थैंक यू सर. दोनों को ऊपर पुल करे तो पुल्ली भी ऊपर जाएगा, मतलब a is equal to x plus y by 2 ही रहेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा. तो नेगेटिव साइन आएगा. इट डिपेंड्स आपको कौन सा पॉजिटिव लिखना है कौन सा नेगेटिव लिखना है. ओके अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा ऐसा. तो उसका डायरेक्शन के हिसाब से कोई भी एक डायरेक्शन का पॉजिटिव लेके लिखता है. ओके तो अभी देखते हैं हम लोग पहले जो एक स्टार्टिंग में ऐसा कुछ लिखा था, तो देखते हैं इसमें रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेगा बाय यूजिंग दिस कंस्ट्रेंट रिलेशन. ओके तो VA और VB में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो पहले हमने अज्यूम किया कि दिस A इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद वेलोसिटी VA, तो ये स्ट्रिंग का वेलोसिटी हो जाएगा नथिंग बट VA. एंड ये जो पुल्ली है ये फिक्स्ड है, तो ये साइड में जो स्ट्रिंग है इसका वेलोसिटी हो जाएगा नथिंग बट VA. एंड राइट साइड में जो स्ट्रिंग है इधर अटैच करके रखा है तो इसका ये तो मूव करने वाला नहीं है, इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया. नाउ वी कैन राइट द कंस्ट्रेंट रिलेशन फॉर दिस पुल्ली. एक हमारा एक मूवेबल पुल्ली है, लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है राइट साइड में जो स्ट्रिंग है वो तो मूव करने वाला नहीं है, इसका 0 है. और लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग है it is going to move downward direction with a velocity VA, and this pulley is attached to the block, and if the block is moving with the velocity VB, this pulley should also move with the same velocity VB. तो ये हो गया VB. अभी इसमें constraint relation क्या आएगा बोलो, VB that is velocity of pulley VB is equal to A by 2 upon 2 VA plus 0 divided by, तो भी हम इसका रिलेशन मिलेगा VB is equal to VA divided by 2. Got it? yes sir. Sir, if they have given 2 pulleys on one incline, how will we solve? 2 pulleys on one incline, मतलब वो डायग्राम कैसा है उसके हिसाब से डिपेंड करेगा. One incline मतलब what do you mean by incline? सर इंक्लाइन पे ऊपर एक पुली और बेस पे एक पुली, तो कैसे सॉल्व करेंगे? वही मतलब उसका डायग्राम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. हो गया, लिख दिया. Yes sir, done. 1 minute sir. Yeah. सर अगर 3 पुल्ली रहेगा तो सर उसमें वो हो जाएगा ना VA plus VB upon 2 ना. कितना भी पुल्ली हो we can use this relation. The respective of any number of pulleys we can use this relation. Yes, done sir. Yeah. 1 minute sir, please 1 minute. Sir, I have sent the diagram to you.
Yeah, well, I'll take. Sir, I also had one doubt in volume question. ऐसा एक मिनट, ये भी ऐसा है, मतलब नॉर्मल वो उसमें पुली फिक्स्ड है ना बेटा, तो मूवेबल पुली नहीं है, तो VA is equal to VB आएगा. ठीक है सर. इसमें मूवेबल पुली है तो अब कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा. इसमें राइट साइड में जो ब्लॉक है कितना, सब ब्लॉक सेम वेलोसिटी से मूव करेगा. There will not be any like substring का जो कोई भी मूवेबल पुली नहीं है, तो all these blocks are going to move with the same velocities. Yes sir. Okay. Yes sir. Now we can find out the relation between them by using one more method that is known as nothing but a tension method or tension dot acceleration method. So we'll discuss what is that method, or which is known as T dot A method. T is tension, dot A is acceleration. So T dot A method. Okay. So let's discuss what is T dot A method. So assume that we are having a pulley over here, and assume that this one is a fixed pulley, and we are having a movable pulley over here. So assume that a string is passing through this pulley. पहले हमने जो क्वेश्चन किया है वही क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा है. इधर हमने इसको A के साथ कनेक्ट करके रखा था, and assume that another string is passing through this part. So assume that this pulley is passing through this point, something like this. Okay. And हमारा जो block है, which was connected to this pulley, and that block was represented by block B over here. Okay. Then we discussed how to find out the relation between N and BD. There is one more method to find out the value of relation between them by writing tension. By writing tension means assume that tension on this string is equal to T. Okay. अब देखो same string में हर एक point में tension same ही रहेगा. तो ये जो same string है, it is passing through all the pulleys like this. Okay. तो same string है. Same string में हर एक point में tension same रहेगा. So here also we can say that tension will be equal to T, and here also we can say that tension is equal to T. अभी हमारा जो न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन है उसमें ऐसा कंसिडर करता है कि पुली इज मासलेस. तो क्वेश्चन में ऐसा मेंशन करेगा पुली इज मासलेस, फ्रिक्शनलेस, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस. ओके. तो स्ट्रिंग का मास, पुली का मास हमने कंसिडर नहीं करता. तो ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस किया, कोई भी क्वेश्चन में अगर मास ऑफ पुली 0 दिया है तो उसका फोर्स भी 0 होना चाहिए, बिकॉज फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. उसमें नेट फोर्स 0 होना चाहिए. तो आप ये पुल्ली को देख सकता है, ये पुल्ली में डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज T एंड T. सो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्सर्ट करेगा दैट शुड बी इक्वल टू नथिंग बट 2T. तो ये स्ट्रिंग में टेंशन रहेगा 2T, सो दैट 2T अपवर्ड एंड 2T डाउनवर्ड, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0. ये समझ में आया? Yes sir. Yeah, same as like that. आप ए पुल्ली को देखो, ये पुल्ली में भी अगर मासलेस, ये पुल्ली भी मासलेस है, तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे T, ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे T. तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होना चाहिए? 2T होना चाहिए. So that net force acting on this pulley is equal to 0. Got it? अभी इसमें नेट फोर्स 0 है और इधर का टेंशन का वैल्यू हमको मिला 2T. तो अब हर एक स्ट्रिंग में जो टेंशन का वैल्यू है वो लिखना है. तो हमने हर एक स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू लिख दिया. अभी देखना है, assume that this point A or block A is moving in upward direction with an acceleration. Let's say it is moving in upward direction with an acceleration AA, and this block B is going to move in downward direction with an acceleration, take it as AB. Okay, A से move कर रहा है और एक AB से move कर रहा है. अभी हम लोग देखना है कोई भी सिस्टम में अगर आप ब्लॉक का और स्ट्रिंग का टेंशन
dot product कर रहा है with acceleration, then we will get the answer is equal to 0. पूरा system का t dot a करे तो we should get the answer is equal to 0. Okay, 1 minute. Why so? Yes. Yeah. Yes. Yeah. So over here, अगर हमने tension dot acceleration, because it is equal to 0, because अगर आप पूरा system को देखेगा तो the net external force acting on system, इसमें जो भी tension वो सब internal forces है, ठीक है? तो internal forces cannot create any acceleration of that object. That's why the value of t dot a should be equal to 0. Only external force can create acceleration. मतलब external force मतलब mg. Gravity is external force. जो भी tension act करेगा इसके अंदर, that is the internal force inside the system. तो अगर t dot a करेगा, मतलब tension dot acceleration करेगा for the entire system, then we'll get the value is equal to nothing but 0. तो ये जो block है, उसके ऊपर tension का value है p. Dot acceleration, tension dot acceleration हो गया उसका a. अभी आप देख सकते हैं a dot b मतलब a b cos theta भी आएगा. अभी टेंशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के बीच में एंगल 0 है, तो cos 0 का वैल्यू क्या रहेगा? 1 रहेगा. तो I'll write it is t into a. अभी आप ब्लॉक b को देखो, ब्लॉक t एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, उसके ऊपर जो टेंशन एक्सर्ट कर रहा है वो t है. एक मिनट, हेलो. So अगर आप ब्लॉक A को देखेगा, so we can observe that tension T is acting in upward direction, and we assume that it is moving in upward direction with an acceleration of AA. तो टेंशन और एक्सेलरेशन का बीच में एंगल 0 है. Same as like अगर B को दिखेगा, so if you are observing this B over here, so tension acting on this is in upward direction, that is 2T, and this B is moving downward direction with an acceleration AB. तो आप देख सकता है इसके बीच में जो एंगल है वो 180 है, और इसके बीच में एंगल था that is equal to 0. Okay? तो इधर आप पूरा सिस्टम का मतलब t dot a करेगा, तो t into a cos 0 is 1, t into a minus, because अगर हमने प्लस इसमें तो क्या मिलेगा? 2t into acceleration का ab into cos of 180 लिखेगा. That should be equal to nothing but 0. So we can write t into AA. Cos 180 minus 1 होता है, तो minus 2t into AB is equal to 0. So we can write t into AA is equal to nothing but 2t into AB. So we can cancel this
So we can write the value of this AA is equal to nothing but 2AB. तो पहले हमने जो रिलेशन फाइंड आउट किया था वो हम लोग A मेथड T डॉट A मेथड से भी फाइंड आउट कर सकता है. Got it? सर Can you बोलो explain बेटा. again, sir, this? आपने वो 0 से इक्वेट क्यों किया? ओवर हियर अगर हमने टेंशन डॉट अभी हम आगे पढ़ेगा वर्क पर में पढ़ेगा कि टेंशन अगर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब एफएस cos थीटा होता है एफएस cos थीटा बट वर्क डन. तो ओवर हियर टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स एंड वर्क डन बाय दैट इंटरनल फोर्स विल बी इक्वल टू 0. तो that's why we are writing the total work done by the tension on this system is equal to 0 करके लिखेंगे. सर पर वो then 0 ही क्यों? बोलो बेटा. मल्टीप्लिकेशन करना था ना, ऐड थोड़ी करना. नहीं टेंशन T dot A T 0 हाँ T dot A is equal to 0 ना. T dot A of for this entire system should be equal to 0. T dot A in the first block plus T dot A in the second block अगर कितना भी block हो that should be equal to 0 ऐसा. Okay. So it can be written like this way also, not TA is equals to minus of 2TAB into cos A 180 because it is in the opposite direction of TA. Yeah, yes. हेलो सर. बोलो बेटा. सर कल के होमवर्क में और 2 क्वेश्चन में डाउट था, सो कैन यू प्लीज डिस्कस दैट? Yes. हो गया लिख दिया. Done. Yeah. Sir, 1 minute. Yes, sir, done writing. Okay.
Now we'll take an example for it. Over here it is given that a pulley block arrangement figure, find the relation between acceleration of block A and acceleration of block B over here. Okay, so we'll discuss how to find out this by using that constraint relation as well as by using that T dot A method. Okay, assume that over here, just considering in this situation, if block A is going to move downward and block P is going to move upward. आप कोई भी डायरेक्शन में कर सकता है, वो मास के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर मास ऑफ A ज्यादा है तो नीचे जाएगा, मास ऑफ B ज्यादा है तो वो ऊपर जाएगा. तो अगर आप कोई भी डायरेक्शन में लेकर लिख सकता है, आपको अगर आंसर नेगेटिव मिलेगा तो हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो गलत है ऐसा मान सकता है. Assume that this A is going to move downward with an acceleration, take it as VA, and this B is going to move upward with an acceleration, take it as AB. Got it? तो अभी देखो अगर सर ऐसा मतलब स्पेसिफिकेशन कोई भी कंसीडर कर सकती है कि ये कोई भी ऊपर जाएगा, कंसीडर कर सकता है. वो एक्चुअली इसमें क्या है कि मास भी रहेगा. यस, समझ, जो क्वेश्चन देगा उसमें अगर अब डायरेक्शन पूछेगा तो उसमें मास भी रहेगा, तो पता चलेगा कि वो मास से कैलकुलेट कर सकता है कौन सा डायरेक्शन में एग्जैक्टली वो मूव कर रहा है. अब क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम में कोई भी डायरेक्शन ले सकता है, आपका मर्जी से आप डाउनवर्ड भी ले सकता है, अपवर्ड भी ले सकता है. अगर मान लो आपने ए बी को अपवर्ड लिया एंड फाइनली आपने ए बी का आंसर निकाला तो यू गॉट द आंसर एज -2. उसका मतलब है हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है. अगर आपको +2 मिला है मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया वो सही है ऐसा. ओके गॉट इट. तो इधर आप कोई भी डायरेक्शन अज्यूम कर दो. तो ये अब देख सकते हैं ये जो स्ट्रिंग है ये ए के साथ अटैच करके रखा है. तो वी कैन राइट इफ ए इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन AA, तो दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू मूव डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ AA and this string is going to move downward with an acceleration of AA. समझ में बात? अभी ये string है downward जा रहा है. This is passing through a fixed pulley. ये string है वो में जाएगा an acceleration of AA. समझा? And ये जो पुल्ली ब्लॉक B है वो इसके साथ अटैच करके रखा है तो इसका क्या रहेगा? AB रहेगा. So ये पुल्ली को आप देखो, ये पुल्ली में आप देख सकता है what are the forces which is acting on this pulley. So on this pulley we can write forces नहीं उसका displacement. तो right side में जो string है, sorry ये pulley है that is moving in upward direction with an acceleration of AA, and A side में जो string है that is moving downward with an acceleration of AA, and A side में जो string है that is moving upward with an acceleration of AB. तभी बोलो इसके लिए equation बोलो, constraint equation बोलो. A is equal to AB is equal to AB minus AA is equals to AA plus AA divided by 2. AB upward डायरेक्शन है तो उसको अपने पॉजिटिव, हम लोग को पॉजिटिव लेना है. इसको मैंने पॉजिटिव ले रहा हूँ, इधर लिखा है, इसको पॉजिटिव ले रहा है, इधर लिखा है, इसको नेगेटिव ले रहा है, इधर लिखा है. तो AA is equal to AB minus AA divided by 2. So we can write the value for relation between them. That is बोलो बेटा, ये AA लिया है वो कौन सा वाला AA, मतलब ऊपर वाला है ना जो ऊपर AA किसका वैल्यू लेगा? पुल्ली का लेगा ना, स्ट्रिंग का नहीं लेना है, पुल्ली का लेता है ना, पुल्ली. ओके हाँ. पुल्ली इज इक्वल टू x plus y of string, ऐसा लिखता है ना. समझ गया. So we can write this 2AA plus AA is equal to nothing but AB. तो रिलेशन क्या आएगा? 3AA is equal to nothing but AB. समझ में आया? Yes sir, understood. Around this one. सर ऑप्शंस में नेगेटिव्स आएंगे. नहीं वो एक ऊपर है और एक हमने एक को ऊपर एक को नीचे लिया ना. Sir, can you explain this once again? Yeah. Sir, I didn't understand the diagram fully. Like. तो ये A के साथ अटैच करके रखा है A string. And हमने assume किया this A is going to move in downward direction with an acceleration of AA. तो A string A ब्लॉक के साथ अटैच है, अगर ब्लॉक नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग भी नीचे जाएगा ना. हाँ. तो इसके लिए इसका एक्सेलरेशन क्या हो गया? A हो गया डाउनवर्ड. A स्ट्रिंग भी ब्लॉक के साथ अटैच करके रखा तो इसका भी क्या होगा? A होगा डाउनवर्ड.
अभी ये स्ट्रिंग है, ये फिक्स पुली से पास कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिंग अगर नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग ऊपर जाएगा. Sir, can you tell this once again? ये जो स्ट्रिंग है ये पुली से पास कर रहा है, ये पुली फिक्स्ड है, हाँ. तो ये साइड का yeah, स्ट्रिंग yeah. अगर नीचे जाएगा तो ये इतना हाँ. ऊपर जाएगा, Yes. ऐसे ऊपर जा रहा है. Hmm. तो अब ये पुल्ली में ये पुल्ली के साथ कनेक्टेड है, तो दिस पुल्ली इज गोइंग टू मूव अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ a. हाँ, वो स्ट्रिंग पुल करेगा. हाँ. Okay. तो ये स्ट्रिंग b के साथ अटैच्ड है. इफ दिस b इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ab, तो ये स्ट्रिंग ab से ऊपर जाएगा. तो ये पुल्ली का हर एक मतलब स्ट्रिंग और पुल्ली का सब एक्सेलरेशन हमने निकाला. Okay, okay. अभी इसको मैंने इधर ड्रॉ किया है. Yes, sir. फिर हमने नॉर्मल रिलेशन x plus y by 2 is equal to acceleration of pulley. ऐसा. Okay. सर इस डायग्राम में सर वो जो बी ब्लॉक है सर उसका एक्सेलरेशन ए बी प्लस ए ए होगा ना? इसका एक्सेलरेशन ए बी, ए का एक्सेलरेशन ए ए. नहीं सर, वो जो बी का जो है मतलब वो अगर ऐसा हो जैसा आपने बी का डायग्राम बनाया एक्सेलरेशन हमने ए बी कंसीडर किया है, ए बी. ओके. And we are finding out AB acceleration of और acceleration of B में क्या relation है. सर वो समझा, मैं बोला था कि अगर समझो कि ये ए जो ए ब्लॉक है वो नीचे आएगा तो फिर बी ब्लॉक मतलब जो बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा वो ए बी प्लस ए ए होगा ना, क्योंकि वो पुली भी ऊपर जाएगा. अरे वही बोला है, A का एक्सेलरेशन ए ए कंसीडर किया है, B का एक्सेलरेशन ए बी कंसीडर किया है. If block A is moving downward direction with an acceleration of a, तो acceleration of B will be 3 times of a. हाँ सर, I understood that. ढूंढा है. Try to find out the answer by using T dot A method. Tension dot acceleration है, वो method से find out करो relation. Assume same thing that this block is going to move upward direction or this is moving downward with the acceleration a, and this is going to move upward with an acceleration ab. Then find out the relation between them by using T dot method. सर पर टेंशन तो डिफरेंट रहेगा ना, क्योंकि दो स्ट्रिंग्स है. क्या यार, तो डिफरेंट लिख दो. मतलब T का हिसाब से लिखा है, कहाँ से भी अब स्टार्ट कर दो उसको. ओके सर. सो मान लो इफ यू आर स्टार्ट राइटिंग टेंशन फ्रॉम हियर, ये स्ट्रिंग में अगर टेंशन T लिख दिया तो ये स्ट्रिंग में भी टेंशन T लिख सकता है. अभी कोई भी पुल्ली है उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो डाउनवर्ड 2T लग रहा है तो अपवर्ड भी 2T होना चाहिए, इसमें 2T रहेगा. समझा? ऐसा लिख. ये सेम स्ट्रिंग है तो इधर भी क्या रहेगा, 2T रहेगा. यस सर. So your voice is breaking. Okay. Now we can observe block A. ब्लॉक ए को आप देखो, ब्लॉक ए के ऊपर जो टेंशन एक्सर्ट कर रहा है वो कितना है, इधर एक्सर्ट कर रहा है 2T और इधर एक्सर्ट कर रहा है T. तो ए के ऊपर टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सर्ट कर रहा है 3T and I'm assuming that this is moving downward direction with an acceleration of AA. इसके बीच में एंगल हो गया 180. अभी आप B को देखो, ब्लॉक B के ऊपर टेंशन एक्सर्ट कर रहा है T और इट इज मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ AB. तो इसके बीच में थीटा का वैल्यू हो गया 0. अभी T डॉट A कर दो. So can you explain how that it is 2T? Net force acting on a pulley should be equal to 0. इसको हमने T कंसीडर किया. Yes sir.
ओके वो टी और टी, तो फिर ये तो पुल्ली का टी ए 2T या हो गया। ए बी टू टी डाउनवर्ड में सेम स्ट्रिंग में हमेशा टेंशन सही नहीं रहेगा। तो इसमें टी है तो इसमें भी टी है। अभी दोनों मिला के 2T का फोर्स एक्सर्ट करा डाउनवर्ड में, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पुल्ली शुड बी इक्वल टू 0, तो अपवर्ड डायरेक्शन में भी 2T होना चाहिए। अभी ये सेम स्ट्रिंग इसमें से पास कर रहा है तो इसमें भी क्या 2T होना चाहिए। ओके Now we can write T dot A for the system. That means ब्लॉक A है उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहा था 3T का, so 3T minus 3T into AA plus T into AB should be equal to 0. That means 3T into AA should be equal to AB. So we'll get this AB is equal to 3 times of AA. तो ऑलरेडी हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज करके भी वो रिलेशन फाइंड आउट किया था। Sir, please send questions on this. Yes sir. जो CDF है उसको हर एक एग्जाम से पहले एटलीस्ट 5 मिनट पे इसको पढ़ना है और CDF में कंपलसरी 100% मार्क्स आना चाहिए। CDF is very basic things and if you are not getting 100% in CDF that means you are not understanding any basics. Okay, तो मेंस में मार्क्स से ज्यादा CDF में 100% मार्क्स होना चाहिए। Means you should have a very clear like concept or some very basic things. तो इसको हर एक एग्जाम से पहले CDF को पढ़ के जाना है। अभी जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए फ्रिक्शन से पहले तक मतलब अप टू 12 पॉइंट तक, अप टू 11th पॉइंट तक तब ठीक से पढ़ के जाना है। नॉट ओनली दिस, हर एक चैप्टर का CDF को पढ़ के जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इट इज रिटन एज, बोलो बेटा Hello, बोलो sir. बोलो बोलो बोलो। Sir, in this week's exam, there will be no friction. No, there will not be like a topic related to friction. Friction next week में आएगा। Okay, thank you, sir. सब एक एक पॉइंट को इसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट में देखा है कि लिखा है दैट लाइक अरिस्टोटल फैलेसी दैट एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ जैसा ही है। If the net external force is 0, body at rest continue to remains at rest, और मतलब body accelerate नहीं करेगा और a body in motion continues to move with uniform velocity. This property is called nothing but inertia. So inertia is nothing but inability of an object to change its state of rest or of its uniform along a straight line. Inertia means resistance to change
And inertia represents inertia. Mass is a measure of inertia. किसका inertia ज़्यादा है उसका mass भी ज़्यादा रहेगा. And Newton's first law for every body continues to be in a state of rest or of its uniform motion along a straight line unless compelled by some external force. And discuss momentum. Momentum is a product of mass and velocity. It is a vector quantity, and SI unit of this momentum is nothing but mass का kilogram and velocity का meter per second. And Newton's second law, rate of change of momentum is directly proportional to applied force. So we'll write F is equal to dP by dt or m into A. And a large force acting on a short time duration for a finite change in momentum is called impulsive force. The impulse is nothing but the product of force into time that will be equal to change in momentum. And Newton's third law, to every action there is an equal and opposite reaction. And according to conservation of momentum, if there is no external force acting on the system, total momentum of the system will remain constant. So we'll write the final momentum is equal to initial momentum. If P and PB are the initial momentum of a system or particles A and B before or V and PA dash and PB dash are their momentum after. So we can say that moment before and momentum after collision or any other instant will be same if the external forces are not acting on the system. If net external force on a body is zero, body will be in translational equilibrium. Net force zero है तो translational equilibrium में आएगा. Net torque भी zero है, वो rotation में पड़ेगा तो rotational equilibrium में हो जाएगा. अगर rotational equilibrium, net torque भी zero है, net force भी zero है, they said to be in mechanical equilibrium. If two forces F1 and F2 kept on a body in equilibrium, then F1 should be equal to F2 or minus of F2. They should act in opposite direction. Three forces kept in equilibrium means F1 plus F2 plus F3 should be equal to 0. Common force in mechanics are contact forces, tension, spring and spring forces. Tension and spring हमने discuss किया था, like gravity. Gravity एक force है, normal reaction एक force है, normal reaction को contact force लिखा है, और tension और हमने फ्रिक्शन बेल्ट लिखा था, इसमें स्प्रिंग लिखा है, फोर्स स्प्रिंग. एंड फोर्स स्प्रिंग होता है F is equal to K into X, where X is a displacement from natural length and K is not nothing but a force constant. And friction we'll discuss in next class. Okay, thank you. Sir, बोलो बेटा. Sir, I have one doubt not related to this. What are bifocal course? Bifocal course. बाइफोकल कोर्स मतलब आपको अगर कंप्यूटर ले सकता है, CS ले सकता है, IT ले सकता है, और अदर देन दैट कौन सा है, हिंदी रहता है, और कौन सा था, इकोनॉमिक्स रहता है, साइकोलॉजी रहता है, और ऐसा 2 सब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी आप सेलेक्ट करना है. और ये भी मतलब इसके एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है, सब ये होता है इसके अंदर, लाइक ये सब्जेक्ट सब बच्चा लोग लेता है. नॉर्मली क्या है कि इट इज बेटर टू गो फॉर CS और IT. अगर CS और IT मिले तो उसमें सम लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स है देयर, उसके लिए गवर्नमेंट अप्लाई करना पड़ेगा. तो वो गवर्नमेंट कोटा के साथ होता है, वी कैन डू एनीथिंग ऑन दैट. वो आपका मार्क्स कितना आ रहा है उसके बेसिस में रहता है. मतलब if there are 50 seats and 100 students are applying for that, the first 50 students will get like that. Okay. So it is normally will suggest अभी जो bio students, आप bio में है कि इसमें है? No sir. मतलब इंजीनियरिंग में ना, तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को बायो भी ले सकता है, बट बायो कभी नहीं लेना है, उसमें 2 टॉपिक रहता है, पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, मतलब बॉटनी और जूलॉजी रहता है, और ऐसा जो भी बायो का स्टूडेंट्स है वो मैथ्स भी नहीं लेना है. भी नीड है वो बाइफोकल में ये मैथ्स नहीं लेना है. जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है बाइफोकल में ये बायो नहीं लेना है, ऐसा. बाकी ले सकता है. इट इज बेटर टू